गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टर्म्स मीन्स फर्स्ट है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। A carbon atom which is attached with 4 different substituents is called asymmetric carbon atom. Here we discuss as uh, this is carbon and the 4 valencies of A, B, C and D we can say. And अगर आपके पास में यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड है तो जिसमें डबल कार्बन है तो वी कैन से A, B, C and whole is D. Okay, and A, B, C and whole is D. And first term we as we discussed asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom, a carbon atom which is attached with 4 different substituents is called asymmetric carbon atom. Then asymmetric species. Simple asymmetric species means species having C1 point as group theory. C1 point group that is a species in which all the symmetry elements are absent is called asymmetric species. Means all symmetry elements हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं, पर अगर सिमिट्री एलिमेंट्स जो हैं वो सब में एब्सेंट हैं, जिस स्पीशीज़ के अंदर सारे सिमिट्री एलिमेंट एब्सेंट हैं वो जो है वो एसिमेट्रिक स्पीशीज़ होती है. जैसे डीएनए मॉलिक्यूल and we can say second example A, that is A, B, C and D. The whole valencies are different. 4 vessel valency of carbon are different. Okay. Then third term is dissymmetric. There is a difference in asymmetric and dissymmetric. Dissymmetric means the species which is optically active. Okay, optically active species which having C2 or C3 axis. As we discussed before that symmetry elements are absent and all the symmetry elements are absent, but the symmetry element axis C2 and C3 is present, and after that the species is optically active, then we can say this is dissymmetric species. Okay, इसके एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे. देन रेसमिक मिक्सचर. व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? देन हम सबसे पहले हम जो कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, वो था ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने कहा था कि इसमें जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसके अंदर जो स्पीशीज़ है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो लाइट को रोटेट कर देता है एंड उसको डी और एल बोला था हमने. ठीक है. देन इक्वल अमाउंट ऑफ एनाइंशोमर्स, दोज डी एंड एल बोथ आर एनाइंशोमर्स. ओके, एंड equal amount of enantiomers yields a racemic mixture. It is always optically inactive due to external compensation. External compensation, there are two type of compensation, external and internal. And external compensation means that when D is rotating, then half part of a molecule is rotating clockwise, then other is anti-clockwise, and it 50% of D lactic acid and 50% of L lactic acid. तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को इनएक्टिव कर देंगे. ठीक है. These all the enantiomers type of enantiomers are called racemic mixture. Means mixture of D and L and 50% D and L. Okay, and this is called DL compensation. External compensation. And external compensation is example of racemic mixture. Then we are introducing chirality. Chirality means, what is chirality? Chirality, as we discussed before,
that a species which is non-superimposable their mirror images is called chiral species. Means मैंने आपको हैंड का एग्जांपल लेके दिया था कि हमारे जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक जैसे हैं, मिरर इमेज हैं, बट these are non superimposable. Okay, and the phenomenon is called as chirality. These species always optically active. हमेशा याद रखना है कि ये जो species हैं वो हमेशा optically active होंगी. Chiral species may be or may not be have asymmetric carbon atom. Chiral center means A, B, C, D as we discussed before. A, B, C, D. Okay, this is carbon, and the whole 4 valencies are different. Okay, the chiral species with asymmetric carbon. Okay, then asymmetric carbon. अब यहाँ पर हम देखेंगे chiral species with asymmetric carbon. अब हम यहाँ पे देखते हैं chiral species without asymmetric carbon. बहुत ही important, इसमें एग्जाम्पल जो है वो आपके पास आ जाता है एग्जाम के अंदर. तो ये क्या है, एलीन है ये. ओके, इसको एलीन बोलते हैं. तो ये जो एलीन है यहाँ पर देखिए हमारे पास इसमें एक सिमिट्री पाई जा रही है ना. तो ये सिमिट्री जो है वो इसको एसिमेट्रिक होने से अलग करती है, लेकिन ये कायरल है मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. Okay, then we discuss the term monochromatic light. As we discuss in polarimetry, monochromatic light and polychromatic light. The whole light is polychromatic, but जब हम इसको प्रिज्म में से अंदर पास थ्रू करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सिंगल लाइट मिलती है. सिंगल वेवलेंथ, सिंगल लाइट का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ की लाइट, और पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है बहुत सारी वेवलेंथ एक साथ होती है. जब हम इसको एक बार छान लेते हैं, जैसे छानना बोल सकते हैं इसको हम, तो सिंगल वेवलेंथ जो है लाइट हमें मिलती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं. अब यहाँ पर आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोनोक्रोमेटिक लाइट विच vibrates in only one plane is called plain polarized light. Okay, polarimeter. मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था कि पोलैरिमीटर किस तरह का apparatus होता है. तो a device which measure the angle of rotation of PPL is called polarimeter. Polarimeter MC light, first of all monochromatic light. ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है यहाँ पर डाली जाएगी यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज करने के लिए. प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो गई है. उसके बाद में हम देखते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो यहाँ पर सैंपल ट्यूब के अंदर से हम जाएगी, उसके बाद में पोलैरिमीटर में से जाएगी. पोलैरिमीटर से हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ABC 3 टाइप के जो हैं लेंथ हम नोट कर लेंगे, और हम स्पेसिफिक रोटेशन और रोटेशन हम अल्फा नोट कर लेते हैं, जैसे उस तरह से. तो यहाँ पर हम अगली टर्म जो देखते हैं, ये टर्म्स अगर आपको पता है देन यू ऑलवेज आप जो है हमेशा इजी रहेंगे, इजी गोइंग रहेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. Meso compounds, optically inactive species which have 2 or more asymmetric carbon atoms are called meso compounds. अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D और L देखा था हमने, D और L, दिस इज रेसमिक मिक्सचर है ना, दिस इज रेसमिक मिक्सचर. अब हम इसी में देखते हैं कि अगर एक ही कंपाउंड है और यहाँ पर ये हम इसको शो कर रहे हैं कि ये इस तरफ रोटेट कर रहा है और ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, मींस एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है. तो दिस काइंड ऑफ यहाँ पर देखिए प्लेन, यहाँ पर प्लेन मिल रहा है हमें, सिमिट्री का प्लेन मिल रहा है, यानी सिमिट्री का प्लेन प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट इसमें जो है 2 या ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है. ओके, तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर हमने किया, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था.
ऑप्टिकली इनएक्टिव था, then these compounds are always optically inactive. Symmetry criteria फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो हमने पहले से कहा था कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम पढ़ेंगे, तो यही है वो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट all three, these all three. Then ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या है और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है. तो ऑप्टिकली जो इनएक्टिव है वो क्या है? तो optically inactive species which rotates the direction of PPL either in clockwise direction or in anti-clockwise direction is called optically active species, and optically inactive species are unable to rotate the direction of PPL, मतलब plane polarized light. Thank you.